excuse me, miss. Your video is lagging a lot. See, I'm not speaking anything. You just have to copy this down. Miss, actually the screen is lagging. Video is lagging. Just copy it down. Then we'll see what can be done. Just copy it down. Then we'll see the output. हो गया ये हो गया आपका? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, I have declared this day as enumerate data type. And what are the list of objects? Monday is assigned as 1, then Tuesday, Wednesday, Thursday. Another thing is there, enumerate A equal to 3, B, C, Z equal to 400, X, Y. So you have to print this. Okay, PF is printf. Now tell me what are the outputs. What about this line? Printf Wednesday equal to 3. So it will be. Okay. What about this? 4. B is equal to 4. C is equal to. Okay. Everybody is getting. Then there is a tab. This slash T is tab. That means here one tab is printed. Okay. And then C will be. C will be 5. 5. Okay. Clear? Next. Printf X equal to this. X equal to something. Then there is a tab. 401. What X equal to? 401. X. 401. Yes, 401 and Y equal to? 402. 400. किसी को कोई डाउट्स हो रहा है यहाँ तक? Next. What about this? Yes, there is someone you should give an entry. What? 2, ma'am. There are people waiting for your entrance. कोई कुछ बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है clear. Ma'am, some students are waiting. Allow them to join the meeting. Yes, they have been allowed. What about this? Ma'am, 2. Thursday by Tuesday will be printed, first of all. Equal to what? 2. Yes, why 2? Because this Ma'am, was because, Monday equal to 1, Tuesday 2, Wednesday 3, 4. So this is 4 divided by 2. Right? Clear? This is how you use enumerate data type. Fine. ये clear हो गया? मैम स्लैश टी क्या है वो?
/t आपके स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप टैब बोल के एक बटन देखते हो? एक तो न्यू लाइन होता है जब कर्सर यहाँ पे वेट करते हैं। सपोज आपने यहाँ पे प्रिंट किया c=5, न्यू लाइन अगर आप देते हो तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आता है 5। Yes, sir. लेकिन अगर आप ये /t देते हो तो क्या होता है, कर्सर यहीं पे दो स्पेसेस छोड़ करके जब टैब खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे सपोज d को प्रिंट कर देता है। ये होता है टैब, दो स्पेसेस को छोड़ दिया जाता है, तो ये वाला टैब है। ठीक है, जैसे न्यू लाइन को /n लिखते हैं वैसे टैब को हम लोग /t लिखते हैं। ओके, ठीक है। Can we move ahead? Yes, ma'am. Now let's look at operators. Okay. Or maybe before that we can do something else. We'll talk about operators after some time. We'll discuss few things else. Let's talk about some formatting. Formatted output functions. What is the main output function, do you know? Printf, right? Yes, ma'am. So suppose I give fine, and I write here printf. Usually I was writing %d this way. Suppose I give you some values here, maybe 6, %6d. Don't get confused, it is also an integer, but what about this 6? This 6 is representing the width. Okay, width of what? This integer, right? So when I say printf %6d, that means, and what I have to print a, that means in 6 widths I have to represent this a. Okay, now when I say this %6d, that means it is write justified. Okay, 2 widths will be left blank. Fine. This is what is %6d. Is it okay? Any doubts? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना Any मैम। doubts? क्या? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार प्लीज। देखो, जब मैं printf देती हूँ हमेशा %d देती हूँ। %d यानी कि इंटीजर के लिए है। a was declared as an integer, that is why %d. So what will it print? 1 2 3 4 normal. This is just a visualization. Okay, it will print anyhow 1 2 3 4. लेकिन अगर यहाँ पे सपोज मैं 6d दे देती हूँ, 6d दूँ, तो क्या होगा? My job would be to present 1 2 3 4 in 6 bits. Okay, so if I am just giving %6d, that means it is write justified. Okay, that means the least significant bit will go here, then accordingly here. And what about, since it was 6 bits, this 2 will be left blank. You will get the output this way. Suppose at times you might be given
060. Okay, if it is 060, that means you are padding zeros here. In that case, you will get the output as 001234. Is it okay? And instead of this, suppose I write -6, then it will be left justified. Left justified means this 2 will be left blank. Is it okay? If I give you minus sign, it will be left justified. Any doubts? Ma'am, if it's a int variable, then it should be accommodated in one Next. bit only. Hello. Suppose instead of this, I give you float. Float. Okay, I'm giving you a float number 1234.5678. Now, I write, what is the format specifier for float? %f a. In that case, you will get 1234.5678 followed by 2 zeros. Why 2 zeros? I said f will give you precision till 6 digits after decimal. Fine. Now, instead of this, if you are given some field width, maybe 10.2, that means what? Here. Now since there is no minus sign, that means it will be right justified. 0.2. That means this is what? After decimal, how many significant digits you want? 0.2 means just 2 digits. 5 and 6 after decimal. Then this is a point. 4, 3, 2, 1. Is it okay? ठीक है? Is it clear? 10 bits you're needing. Yes, ma'am. You need 10 bits. The width of this number has to be represented in 10 bits. No minus sign, that is why it is right justified. And 0.2 means just 2 digits after your decimal. Clear? Is it okay? Ma'am, if we write, Yes. if we write 2.2 at the pace of 10.2, then what will be the output? If you write 2.2, Yes, then ma'am. it was 1, 2, 3, 4.5678 now. And you were saying 2.2, right? Yes, ma'am. This First, way. That means, how are you filling it up? Okay. Just 2 bits. But how will you fill this time? Just 3, 4. Okay, just this 2. But also this is compiler dependent. If you run it in Linux, this will give 3, 4. At times it might give you 4.5. 4 point. At times in some other compiler it might give you just 0.5. It is compiler dependent. Okay. okay. So whichever system you will be using, you have to execute this program and see what output is coming.
नेक्स्ट। मैम डेसिमल भी तो एक जगह ले रहा है ना? हाँ क्या? मैम डेसिमल डेसिमल भी तो एक स्पेस जगह ले रहा है। यस यस, डेसिमल भी एक स्पेस लेगा। Now let's look at unformatted input functions. Whatever we saw previously, that was formatting. We were using percentage something something. Yes. हम डेसिमल भी अगर Yes. एक जगह लेगा तो फर्स्ट वाले केस में डबल जीरो थोड़ी आएगा, एक ही जीरो होना चाहिए ना। फर्स्ट वाले केस में जो परसेंट एफ और प्रिंट ए करना था, हाँ सिर्फ परसेंट एफ नहीं, परसेंटेज सिर्फ एफ जब करते हैं तो इसमें विथ स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो जो नंबर आप दोगे वो पूरा प्रिंट कर देगा। जस्ट इसमें डिग्री ऑफ प्रिसीजन प्रिंट करेगा, 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन तक प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपने विथ नहीं दिया है, जितना नंबर होगा अगर आपके फ्लोट के रेंज में वो पूरा प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे विथ नहीं स्पेसिफाई किया। हम डेसिमल एक प्लेस लेगा कि नहीं लेगा इसमें? क्या? जैसे मैम टोटल 10 बिट्स का होता है ना एफ का। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम जो फ्लोट होता है उसका 10 बाइट होता है ना, 10 बिट्स के। 8 बाइट्स होता है, सॉरी 4 बाइट्स होता है फ्लोट का। मैम तो इसमें जीरो क्यों बैठाते हैं? जीरो ये वाला? यस मैम। जब आप फ्लोट देते हो, फ्लोट मतलब क्या, कोई भी आप डेसिमल नंबर दे रहे हो, डेसिमल नंबर में अगर सपोज 2.3 दिए तो उसका 6 3, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ प्रिसीजन, कितना आपका एक्यूरेट है ये मेजरमेंट, इससे क्या बोलते हैं, कितना प्रिसाइज है आपका मेजरमेंट, है ना। तो ये आपका जितना डिजिट्स होगा उतना आपका प्रिसाइज मेजरमेंट होगा ये, तो इसीलिए वो प्रिसीजन को मेजर करता है फ्लोट में 6 डिजिट्स। दैट मींस 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन तक ही जा सकता है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, unformatted input functions. I don't know how long we'll be able to continue this way because current is not there and Wi-Fi is not working. So in case if there's any lag, please let okay. मैम मैम वीडियो इधर पूरा बारिश आ लैग रहा है, कर बहुत रहा है, लैग हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा क्लियर कर वीडियो रहा बहुत लैग कर रहा है मैम। मैम बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा बारिश बहुत तेज हो रहा है मैम, इसलिए थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी वीक हो गया है। मैम जूम पे दीजिएगा। तेरे घर तरफ बाढ़ आ रहा है एक एक मैम। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, एक कर दीजिए। मैम दवा क्या मैम लड़का? ये बहुत स्लाइड खराब हो है। गया। मैम ड्यू टू बैड वेदर हम लोग का भी नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक हो गया है। यस मिस, क्या बोल रहे हो, नेटवर्क कनेक्शन? नेटवर्क कनेक्शन बहुत मैम पुअर हो गया। बैड वेदर के चलते हम लोग का भी नेटवर्क कनेक्शन वीक हो गया है, जिसके चलते पूरा वीडियो लैग हो रहा है मैम। मैम समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप इसकी लोगों वजह को से। नहीं दिख स्क्रीन आज क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। कैंसिल हो गया मैथ्स का क्लास भी। मैम जूम पे okay, लिया we'll just do this today and then we'll stop for today's class. चलेगा? मैम इसमें Okay, लैग ma'am. करके This जूम पे will कब hamper the class. मैम कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, ऑडियो वीडियो एकदम मैच नहीं कर रहा। Heavy lag, बार-बार reconnecting. So what can be done? कल करते हैं Ma'am, is there any other alternative for this? मैम आज का क्लास See, my ओवर कर Wi-Fi दीजिए। is not. मैम 3 बजे तो हम लोग पूरा हफ्ते खाली Phone रहते is हैं। also not working. क्लास में आइए। 3 बजे तो हम I लोग think पूरा on your side also there is क्या बोल रहे हो? raining. मैम बोले 3 बजे हम लोग को क्लास पढ़ने रहता है, हम पूरा हफ्ता, तो कभी भी ले सकते हैं आप। I don't think so we'll be able to continue this way if you're not understanding.
क्या करना है, क्लास को कंटिन्यू करना है या क्या करना है ये बताओ। पोस्टपोन मैम। पोस्टपोन कर दीजिए, कर Final लीजिएगा मैम। कंटिन्यू कीजिएगा क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली। मैम पोस्टपोन कर दीजिए, कर ले लीजिएगा। यस मैम कैंसिल। अरे भाई सीआर को बोलने दो ना। मैम आवाज आ रही है मेरी? ये सारी है, बताओ क्या करना है, क्लास कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट क्लास में आज के लिए पोस्टपोन कर दीजिए मैम, नेक्स्ट क्लास में मेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैम किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का। ओके, तो एक काम करो, आप लोग अटेंडेंस शीट सर्कुलेट करो सीआरस। अटेंडेंस तो लेंगे, व्यक्ति लोग ज्वाइन किए तो ज्वाइन ही। अटेंडेंस शीट सर्कुलेट करो और मुझसे भी शेयर करो। अब तक जितने क्लासेस हुए हैं मुझसे अटेंडेंस शीट प्लीज शेयर करो आप लोग सीआरस। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्लास के पहले नोटिस सेंड कर दीजिएगा। यस, नेक्स्ट क्लास के पहले मैं डेफिनेटली नोटिस भेजती हूँ। आदित्य चैट बॉक्स में डाल दे भाई अटेंडेंस। आज चैट बॉक्स से शो ही नहीं हो रहा है। आज वही चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा मैम। मेरे मैम में तो जूम हो रहा है। ना, इसमें बहुत लैग करता है। यस मैम, Zoom जूम में पे होगा तो अच्छा होगा। मैम जूम या गूगल मीट कुछ भी ले लीजिए, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। यस मैम, ये देखो प्रॉब्लम बहुत Zoom में एक मिनट सुन लो मेरी बात। सर Zoom में 100 स्टूडेंट से ज्यादा आप ऐड नहीं कर पाओगे। मैम जूम में आज बच्चा सब 200 हुआ था। 150 था। मैम गूगल मीट यूज करिए मैम। मैम गूगल मीट में 100 पार्टिसिपेंट्स ही ऐड हो सकते हैं, उसके बाद एक कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैम 2-3 डिवाइस यूज कीजिए। 2-3 डिवाइस यूज कीजिए। लिए थे ना क्लास, 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स था। कौन क्लास दिया था? क्यों किया मैम सब्सक्रिप्शन आज? मैम फिजिक्स का अटेंडेंस लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, जो लोग यहाँ पे अटेंडेंस बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया अटेंडेंस लिंक। ओके, थैंक यू ब्रदर। अटेंडेंस शीट कौन सा? अटेंडेंस फॉर्म गूगल फॉर्म रहता है मैम। ओके, सारा ग्रुप में नहीं है। वेबएक्स पे भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं फाइंड आउट करती हूँ, लेकिन मुझे लगा इसका वीडियो क्वालिटी अच्छा है। आज हो सकता है नेटवर्क इशू हो, लेकिन इसका क्लैरिटी अच्छा है। मैंने गूगल मीट में ट्राई किया है, आपकी क्लास के लिए नहीं, दूसरे क्लास में मैंने ट्राई। आज हो सकता है सबका नेटवर्क इशू, मेरा खुद का आज नेटवर्क इशू है। तो आप लोगों का बाकी क्लासेस कैसे चल रहे हैं? कुछ या तो मैथ क्लास गूगल मीट पे चल रहा है, 150 पार्टिसिपेंट्स। फिजिक्स जूम पे चल रहा है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेंट कम है इसीलिए। ओके, तो वो लोग स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं सर लोग, फिजिक्स वाले सर, मैथ्स वाले सर? यस मैम, हम बोर्ड में ही पढ़ाते हैं। यस मैम। मतलब आपको मटेरियल्स शेयर कर लेते हैं, पीपीटी टाइप्स, वो पढ़ाते हैं, राइट? मैम बोर्ड में लिख के बोर्ड में पढ़ाते हैं। मैम आप बोर्ड में पढ़ाइए, सही है मैम। टीचर जो होते हैं ना वो मतलब बोर्ड में अच्छा लगता है। यस मैम, बोर्ड में पढ़ाई में अच्छा रहता है, पीपीटी में मजा नहीं आता। नहीं देखो, पीपीटी में मेरे लिए और भी इजी रहेगा, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि आई डाउट तुम्हें कितना समझ में आएगा। नहीं मैम, हम लोग भी पढ़ लेंगे। बोर्ड पर ही बताइए मैम। मैम इसी में ठीक है, एमएस टीम्स। ठीक है, आज में भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो, खराब वेदर है, तो इसीलिए हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। मैं फिर भी देखती हूँ और किसी में अगर ट्राई करके। संस्कार अटेंडेंस लिंक कहाँ भेजे हो? ग्रुप में भेज दिए भाई, देख लो। ओके, ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। मैम आप सीधा कंपाइलर में, मैम आप कंपाइलर में ही स्क्रीन शेयरिंग करके बता सकते हैं अगर चाहेंगे तो। हाँ, वो मैं करूंगी। आपका लैब एक बार शुरू हो जाए फिर किया जाएगा वो भी। बाकी और कोई लैब स्टार्ट हुआ है आप लोगों का?
नो मैम। No, ma'am, not yet. मैम आज मैथ्स का क्लास भी पुअर कनेक्शन की वजह से नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब आज सुबह से ही नेटवर्क का इशू है। यस मैम। मैम अटेंडेंस में हम लीव कर सकते हैं? यस, अगर अटेंडेंस हो गया तो आप लीव कर सकते हो। और सीआर्स प्लीज शेयर द अटेंडेंस शीट विद मी आल्सो इन माय। हाँ श्योर मैम, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, मतलब आज तक जितने भी क्लासेस हुए हैं सारा अटेंडेंस शीट मुझसे शेयर करो, ठीक है? हाँ ओके मैम, सर को कर देते थे मैम, आपको ही भेज देते हैं। हाँ मुझे भी भेज दिया करो। ओके मैम। चिंद्री का जो जूम का सब्सक्रिप्शन है वो आप नहीं लिए हुए हैं क्या? क्या? अरे वहाँ खराब हो गया। अरे वो खत्म हो गया सब्सक्रिप्शन। एक्सपायर हो गया भाई, अरे आज ही रिन्यू हुआ है। आज ही फिजिक्स का क्लास था, उसमें 170 पार्टिसिपेंट थे। मिस बीआईटी का जूम 173 था। आप उससे अच्छा होता है मैम। ठीक है, मैं बात करती हूँ क्या किया जा सकता है। सब्सक्रिप्शन है यार उसमें। मैम और क्लास थोड़ा जल्दी कीजिएगा तो अच्छा। क्लास जल्दी कीजिए मींस मतलब 1-2 बजे से स्टार्ट। 1-2 बजे से आप कर लोगे? नो मैम, लंच नहीं करना नो मैम, नो मैम, नो मैम, यही टाइम ठीक है। खाना वाना भी खाना है, खाएंगे कि नहीं खाना? मुझे लगता है आपको लंच करना होगा। लंच के बाद आप थोड़ा सा अगर 1 घंटा रिलैक्स करोगे तो 3 बजे फ्रेश माइंड से आप आओगे, इसीलिए मैं ये टाइम परफेक्ट है। ठीक है, सही है। मिस आपने सही सोचा। क्लास तो रहता ही है, अभी टाइम अच्छा है। क्लास कहाँ? सबको अटेंडेंस शीट शेयर हो गया है? कैन आई एंड द मीटिंग? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ यू यस मैम।